حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بھاری گزرتا تھا، لوگ آ رہے پردہ نہیں ہے. آپ نے کہا اے اللہ کے رسول، کاش اللہ تعالیٰ آپ کی بیویوں کو حکم دے دے پردے کا. یہ جو ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں اچھے بھی آتے ہیں، آمنے سامنے آپ کی بیویوں سے بات کرتے ہیں. حضرت عمر کے دل کی کا خیال تھا. اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نازل فرما دی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے نبی کے صحابہ، اب آج سے پردے کا حکم نازل کیا جا رہا ہے. اب تمہیں نبی کی بیویوں سے بھی کوئی سامان مانگنا ہو تو ڈائریکٹ ان کے سامنے مت جانا، پردے کی آڑ سے ان سے سامان مانگنا. جنگ بدر کے موقع پر اسلام کی کفر کی پہلی لڑائی تھی، مسلمان جیت گئے، 70 قیدی پکڑے گئے. اللہ کے نبی نے صحابہ کی ایک مخصوص میٹنگ کی. کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی چن چن کے ان کو مار دیا جائے. یہ کفر کے سرغنے ہیں، یہ ہیڈ ہیں کافروں کے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنٹرول دیا ہے. ان سب کو ختم کرنا چاہیے، ان کی طاقت کو کچلنا چاہیے. حضرت ابو بکر تھوڑے نرم دل تھے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے، سب اپنے خاندان کے لوگ ہیں، سب اپنے رشتہ دار لوگ ہیں، اپنے قبیلے کے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے فریہ لے لیا جائے، ان سے پیسہ لے لیا جائے، پینالٹی لے لیا جائے، چھوڑ دیا جائے. اور جو پڑھے لکھے ہیں ان سے کہا جائے کہ مدینہ کے انصاریوں کے بچوں کو لکھنا سکھاتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے فیصلے کو بہتر سمجھا اور اسی پر عمل کیا. مگر قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ اے نبی، آپ کو حق نہیں تھا کہ آپ ان قیدیوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم اترے بغیر اپنے من سے کوئی فیصلہ کرتے. اللہ نے حضرت عمر کے فیصلے کی تائید کی. یہ حضرت عمر ہے، اتنے جینیس تھے، اتنے ذہین تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ دیا تھا کہ ان کے فیصلوں کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہوا کرتی تھی. سب سے پہلے مسلمانوں میں امیر المومنین کا لقب حضرت عمر کو ملا ہے. ان کے پہلے حضرت ابو بکر کو خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا، رسول کا خلیفہ. جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو ان کو خلیفت رسول اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ. مگر بعد میں لوگوں نے ان کو امیر المومنین کا لقب دیا. سب سے پہلے یہ لقب حضرت عمر کو دیا گیا. صحابہ کرام ہجرت کے سفر میں نکلے، چوری چھپ کے نکلتے تھے. حضرت عمر پہلے انسان ہیں، کھلے عام نکلے، خانے کعبہ میں آئے، طواف کیا، کہا کہ میں عمر ابن خطاب ہوں، میں مدینہ جا رہا ہوں. جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اور جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو گم کر دے، وہ آئے اور عمر اس کا فیصلہ کرے گا. بابا کے دوہل اعلان حضرت عمر ہجرت کے سفر پہ نکلے. جب تک حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے، صحابہ کرام چھپ چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر اسلام لائے، کہا ہے اللہ کے نبی جب ہم حق پر ہیں تو کیوں چھپ کر کے نماز پڑھیں گے. سب سے پہلے اوپنلی کھل کر کے نماز پڑھی گئی حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب تک حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے ہم ذلت و رسوائی کی حالت میں تھے. حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ایک عزت اور سرفرازی کی کنڈیشن میں ہم آ گئے، ہم سر اٹھا کر کے جینے لگے. حضرت عمر اتنی امپورٹنٹ شخصیت تھی. حضرت عمر اللہ کے نبی کے ساتھ تمام غزوات میں شامل ہوئے. جنگ احد میں اللہ کے نبی کے ساتھ جو چند صحابہ ثابت قدم تھے اس میں حضرت عمر تھے. اب جس کے دل میں حضرت عمر کے خلاف بغض ہے، بھائی جنگ احد میں کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو میدان چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے حالات ایسے تھے، کنڈیشن ایسی تھی، اچانک حملہ ہوا تھا، کچھ صحابہ کرام میدان چھوڑ کے جا چکے تھے. اب جو حضرات جن کے دلوں میں حضرت ابو بکر عمر کا بغض ہے، وہ کہتے ہیں صاحب یہ لوگ تو بھاگ گئے تھے، بھگوڑے تھے. نعوذ باللہ. پہلی بات تو بھاگے نہیں تھے، یہ لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. یہ تو ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے. اور دوسری بات یہ کہ اگر نعوذ باللہ مان بھی لیا جائے کہ حالات اور وقتی کنڈیشن کے تحت ایسی سچویشن پیدا ہو گئی کہ میدان جنگ میں قدم نہیں جم سکا، تو قرآن میں اللہ نے جب کہہ دیا کہ جنگ احد میں جو نبی کے صحابہ میدان میں نہیں ٹک پائے چلے گئے، ہم نے ان کو معاف کر دیا. جن کو اللہ نے معاف کر دیا، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا کہ ہم ان کے اوپر اعتراض کریں. تو بعض لوگ حضرت عمر پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگے تھے، حالانکہ ایسی بات صحیح نہیں ہے. جنگ حنین ایک جنگ ہوئی تھی اللہ کے نبی کی زندگی میں. اس جنگ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھی، 12,000 کی فوج تھی، اور سب زیادہ تر نئے نئے اسلام لائے تھے. صحابہ کرام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اتنی بڑی تعداد ہماری ہے، ہم تو دشمن پر غالب ہی آ جائیں گے، ہم تو جیت جائیں گے. لیکن جو دشمن تھا وہ تیر اندازی میں ماہر تھا، اور پہاڑوں میں
गारों में छुप छुप करके जब उन्होंने तीर चलाना शुरू किया, मुसलमान शुरुआत में मैदान छोड़ के भागने लगे। उस मौके पर अल्लाह के नबी मैदान जंग में डटे रहे। अल्लाह के नबी की शुजाअत और बहादुरी का जलवा उस वक्त लोगों ने देखा। जब जंग हुनैन में लोग जा रहे थे, अल्लाह के नबी कह रहे थे, अलैया इबादल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो इधर आओ, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, अना नबी ला कज़िब, मैं हूं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, मैं झूठा नहीं हूं। उस नाजुक मौके पर चंद सहाबे किराम अल्लाह के नबी के साथ साथ थे। उन चंद सहाबे किराम में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे। गज़वा तबूक के मौके पर यही हजरत उमर थे जिन्होंने कहा था, अपने घर का आधा माल लेकर के आए और कहा था कि आज उमर अबू बकर से आगे निकल जाएगा, लेकिन हजरत अबू बकर इनसे भी आगे निकल गए, अपने घर का सारा माल लेके चले आए। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी की जिंदगी में हर मौके पर नबी के साथ रहे। नबी का जब इंतकाल हुआ, जाहिर है आज हमारा अपना कोई चला जाए तो जाहिर है हमें एक सदमा होता है, गम होता है। हजरत उमर बहुत मजबूत दिल के आदमी थे, मगर यह सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनके दिल और दिमाग ने तस्लीम ही नहीं किया कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया है। उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी वैसे ही गए जैसे मूसा अलैहिस्सलाम गए थे कूहे तूर पे और वापस आ गए थे। अल्लाह के नबी आएंगे और उन लोगों की गर्दन मार देंगे जो कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया है। उस मौके पर जाहिर है कि हजरत उमर का ये रिएक्शन भी उनकी मोहब्बत की दलील है कि अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत करते थे, और वो मोहब्बत इस कदर थी कि उनका दिल मानने को तैयार नहीं था कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ है। फिर जब हजरत अबू बकर ने खुतबा दिया, तब हजरत उमर कहते हैं मेरे दिल को यकीन आया। उसके बाद जब हजरत अबू बकर खलीफा हुए, तो हजरत अबू बकर के सेक्रेटरी के तौर पे, उनके वजीर के तौर पे, हर मामले में उनके मुशारिक के तौर पे, उनके पार्टनर के तौर पे, उनके मददगार के तौर पे हजरत उमर उनका साथ देते रहे। और 2.5 साल के बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल होने लगा, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यही कहा लोगों से कि नबी की जिंदगी में मैंने देखा कि नबी मेरे बाद अगर किसी को तरजीह देते तो उमर को देते थे। मैं उम्मत के लिए अगर अपने बात सबसे मौजू, सबसे मुनासिब, सबसे सूटेबल अगर किसी को समझता हूं तो उमर इब्न खत्ताब को समझता हूं। उसके बाद हजरत अबू बकर की वफात के बाद बिला किसी इख्तिलाफ के हजरत उमर खलीफा हुए, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 12 साल तक खलीफा रहे। और ये जो 12 साल की मुद्दत है, इस्लामी तारीख का सबसे गोल्डन दौर है। इस दौर में दुनिया के उन चप्पे चप्पे तक इस्लाम का झंडा पहुंचा जहां कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। ईरान की ताकत, रोम की ताकत, यूरोप तक इस्लाम पहुंच गया हजरत उमर के दौर में। हिंदुस्तान की सरहदों तक इस्लाम हजरत उमर के दौर में पहुंचा। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को यह एजाज भी हासिल है कि उनके दौर में बहुत सारे ऐसे काम हुए जो पहली मर्तबा हुए। फौजियों का रजिस्टर पहली मर्तबा उनके दौर में बना। जो इलाके फतह होते थे उनको स्टेट वाइज बांट देते थे, हर इलाके को 4-5 स्टेट में बांट देते थे। ये हजरत उमर ने सबसे पहले ये काम किया था। फौजी लोग जाते थे लंबे लंबे टाइम तक बॉर्डर पर सरहद पे लड़ने के लिए, यहां बीवी बच्चों को छोड़ के जाते थे। तो हजरत उमर ने किसी औरत को देखा, शादीशुदा औरत थी, शौहर मैदान जंग पे गया हुआ था। वो औरत अरबी शायरी पढ़ रही थी, अपने शौहर को याद कर रही थी। हजरत उमर को अंदाजा हुआ कि कोई लिमिट तय होनी चाहिए। अपनी बेटी हजरत हफ्सा को बुलाया, अल्लाह के नबी की बीवी भी है, इनकी बेटी भी है। उनसे पूछा कि एक औरत अपने शौहर के बगैर कितने दिन तक सब्र कर सकती है। उन्होंने अपने तजर्बे से कहा कि 4 महीना का एक पीरियड है, 4 महीना, मैक्सिमम 4 महीना होना चाहिए। हजरत उमर ने लिमिट तय कर दी कि 4 महीने के बाद ड्यूटी बदल जानी चाहिए। 4 महीने के बाद एक इंसान अगर फौज में गया है, सरहद पे गया है, वापस उसे घर आना चाहिए। हजरत उमर के दौर में डेट लिखने के लिए कैलेंडर की जरूरत पड़ी। साहबे किराम की मीटिंग बुलाई उन्होंने, भाई कैलेंडर हमें चाहिए, हम कैलेंडर की शुरुआत कहां से करें। किसी ने कहा नबी की पैदाइश से शुरू कर दिया जाए, किसी ने कहा नबी की बेसत से शुरू कर दिया जाए। हजरत उमर ने कहा कि मेरी राय यह है कि हिजरत से शुरू किया जाए। इस्लामी तारीख में हिजरत एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हिजरत के पहले की जिंदगी अलग है, हिजरत के बाद की जिंदगी अलग है। मुसलमानों को ताकत और कुव्वत मिली हिजरत के बाद। हिजरत के बाद से तारीख के पन्ने बदल गए हैं, लिहाजा हमारा कैलेंडर हिजरत से होना चाहिए। और हिजरत से होने में फायदा यह भी है कि यह पर्सनल नहीं रहेगा, यह किसी शख्सियत और किसी की जात से नहीं जुड़ा रहेगा, यह इस्लाम के साथ जुड़ा रहेगा। यह हजरत उमर का दिमाग था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर में एक काम और किया। उन्होंने रातों को गश्त करना शुरू किया। खलीफा हैं,
22 लाख स्क्वायर मील के दायरे पर हुकूमत है, और रात में सादा लिबास, सादा कुर्ता पहन करके, ऐसे भी वो सादा कपड़ा पहनते थे, कोई कर्रोफर नहीं था, कोई बादशाहत वाला कोई गुरूर नहीं था, रात में गश्त करते थे। किसको क्या जरूरत थी? एक जगह गए, बद्दू बाहर बैठा हुआ था, भाई क्या बात थे, परेशान क्यों हो? कहा कि मेरी बीवी को ज़चकी का टाइम है, डिलीवरी का टाइम है, और कोई औरत नहीं है, कोई दाई नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, बीवी दर्द से परेशान है। हजरत उमर फारूक फौरन घर आए और अपनी बीवी को लेकर के पहुंचे कि चलो एक इमरजेंसी काम है, एक औरत को डिलीवरी कराना है। भाई ये तो एक बड़ा मामूली काम है, दाई का काम है। इस्लामी हुकूमत की फर्स्ट लेडी, खलीफा वक्त की बीवी, अमीरुल मोमिनीन की बीवी जा रही है और उस बच्चे की पैदाइश का काम करा रही है। और जब पैदाइश हो जाती है, अंदर से आके हजरत उमर की अहलिया कहती है, अमीरुल मोमिनीन खुशखबरी दे दीजिए, अपने भाई को बेटा हुआ है। उसने सुना अमीरुल मोमिनीन, कांप गया, अमीरुल मोमिनीन मेरे घर में वो चावल ला रहे हैं, आटा ला रहे हैं, जरूरत की चीजें ला रहे हैं, उनकी बीवी आकर के मेरे घर में पैदाइश करा रही है। ये हजरत उमर थे। हजरत उमर कहा करते थे कि दरियाए दजला के पास भी अगर कोई खच्चर फिसल करके गिर जाए तो उमर को इस बात का डर है कि अल्लाह के यहाँ उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये हजरत उमर थे मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी ने एक मरतबा ख्वाब देखा था, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। आपने ख्वाब देखा कि मैं एक कुएं से पानी खींच रहा हूं, थोड़ी देर तक मैंने खींचा, फिर मैं किनारे हट गया, फिर हजरत अबू बकर आए, उन्होंने भी उस कुएं से डोल को खींचा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अबू बकर ने बहुत अच्छी तरीके से डोल खींचा, मगर उनके डोल खींचने में कुछ कमजोरी थी, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। फिर हजरत उमर आए और उन्होंने तो इतनी तेजी से डोल खींचा है और इतना पानी निकाला है कि उन्होंने सारे खेतों को सैराब कर दिया। साहबे किराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी इस ख्वाब की ताबीर क्या है? आपने फरमाया इस्लाम की खिदमत और इस्लाम की इज्जत इससे मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता करेगा। एक मरतबा अल्लाह के नबी, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत मैं सुना रहा हूं आपको, एक मरतबा अल्लाह के नबी ने ख्वाब देखा कि मैं दूध पी रहा हूं और इतना दूध पी लिया अल्लाह के नबी ने कि आपका पूरा बदन बिल्कुल सैराब हो गया। यहां तक कि आप फरमाते हैं कि मैंने दूध का असर अपने नाखूनों में महसूस किया। उसके बाद मैंने जो बचा हुआ दूध था वो हजरत उमर को दे दिया और हजरत उमर ने उसको पी लिया। साहबा ने पूछा फमा अव्वल तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी इस ख्वाब की ताबीर क्या है? आपने फरमाया इल्म है। साहबे किराम में टॉप के आलिम थे हजरत उमर। साहबा कहते हैं कि दीन का आधा इल्म हजरत उमर के पास था। ये नहीं कि सिर्फ बहादुर थे, ये नहीं कि सिर्फ रोब दबदबा था, ये नहीं कि सिर्फ अच्छे मैनेजमेंट वाले थे, इल्म भी बहुत था, नॉलेज भी बहुत थी हजरत उमर के पास। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी की हदीस भी बड़ी मशहूर हदीस है कि ऐ उमर, तुम जिस रास्ते पे मा लक़ियका शैतानुन फज्जन क़त्तु इल्ला सलक फी गैरि फज्जी, की बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। ऐ उमर, शैतान जिस रास्ते में तुमसे मिल जाए शैतान रास्ता बदल देते। ये कोई मुहावरा नहीं है, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। वो जो हम बोलते हैं ना शैतान हजरत उमर को देख के रास्ता बदल देता था, ये बुखारी और मुस्लिम की सही रिवायत है। अल्लाह के नबी का फरमान है, उमर को देख के शैतान रास्ता बदल देता था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक मरतबा मुल्क शाम के गांव अमवास में ताउन की बीमारी फैल गई। हजरत उमर उस वक्त सफर में निकले थे और उस गांव में पहुंच गए थे। जब आपने सुना कि यहाँ ताउन की बीमारी फैली, आप वापस जाने लगे। जब आप वापस जाने लगे तो एक सहाबी ने एतराज किया, कहा कि हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने एतराज किया, कहा कि अफरारुम मिन क़दरिल्लाह, ऐ उमर अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हो? हजरत उमर ने कहा नफिर्रु मिन क़दरिल्लाह इला क़दरिल्लाह, हम अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं, अल्लाह की तकदीर की तरफ भाग रहे हैं। क्या मतलब? हजरत उमर ने कहा कि यहां अगर बीमारी फैली है तो मैं वहां जाकर के अपनी जान को हलाकत में डालूं, इससे बेहतर है कि मैं वापस अपने इलाके में चला जाऊं। यह भी अल्लाह की तकदीर का एक हिस्सा है। और बाद में दूसरे साहबा ने हदीस पढ़ के सुनाई, अल्लाह के नबी की हदीस भी मौजूद थी कि जब किसी इलाके में जाओ और वहां ताउन की बीमारी फैली हो तो वहां मत जाओ। जो लोग वहां मौजूद हैं वो वहां से न निकलें और जो बाहर के लोग हैं वहां न जाएं। जैसे भी कोरोना का दौर हमने देखा, तो कोरोना के दौर किसी भी इन्फेक्शन वाली बीमारी में अगर हमारी जात से दूसरों को इन्फेक्शन पहुंच रहा है तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। ये उसूल भी अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद था। हजरत उमर ने उस पर अमल किया। हजरत उमर के दौर में एक साल बड़ा सूखा पड़ा था। देखो अल्लाह के नेक बंदे थे, सहाबा थे, मगर सूखा पड़ा था। कुदरती आफतें, कुदरती मुसीबतें, बारिश का ना होना, गर्मी का ज्यादा हो जाना, सर्दी का ज्यादा हो जाना, ये अच्छे लोगों के दौर में भी होता है।
حضرت عمر کے دور میں ایک سال ایسا پڑا بہت سوکھا پڑ گیا, اتنا زیادہ پریشانی کا دور آ گیا, زمین بالکل کالی ہو گئی, کوئی پیداوار نہیں ہو رہی تھی, اور بیت المال میں جو کچھ تھا سب بانٹ دیا گیا غریبوں کو. اس دوران حضرت عمر خود ایسے نازک وقت میں جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں وہ پہلے اپنے گھر کو مال سے بھر لیتے ہیں. بھئی ہر انسان پہلے اپنی فیملی کو دیکھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں سرکہ روٹی کے ساتھ لگا کے کھا لیا کرتے تھے. ایک معمولی مکان میں زندگی پر رہے اور کبھی اپنے لیے کوئی اچھا لائف اسٹائل نہیں چنا, اچھے کپڑے نہیں بنائے, اپنے بال بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی, اور جب نازک وقت آیا امت کے لیے تو بیت المال کا خزانہ امت کے اوپر لٹا دیا اور خود سرکہ اور روٹی کھا کر کے حضرت عمر نے گزارا کیا ہے. سن 17 ہجری میں حضرت عمر نے مسجد حرام اور مسجد نبوی کی ایکسٹینشن کا کام کیا, اس کی توسیع کا کام کیا. مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی بیویوں کے بھی کمرے تھے اور کچھ اور صحابہ کے بھی گھر تھے. باقی سارے لوگوں کے گھر خرید لیے, نبی کی بیویوں کو چھوڑ کے باقی لوگوں کے گھر خرید لیے. اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گھر تھا, انہوں نے اپنا گھر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. تو حضرت عمر نے سب سے پہلے اپنے دور میں اللہ کے نبی کی مسجد کی توسیع کا کام کیا تھا. ذی الحجہ کے مہینے میں, ذی الحجہ کے اخیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا ابو لولو فیروز نے. یہ ایک پارسی غلام تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا. اس کو کچھ شکایت تھی حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے, اور جب حضرت عمر کے پاس یہ آیا تو حضرت عمر نے اس کے فیور میں فیصلہ نہیں کیا. حضرت عمر نے جو صحیح بات تھی وہ کہہ دیا, اس کو بڑا برا لگا, اس نے اپنے دل میں بغض پال لیا کہ میں اب حضرت عمر کو چھوڑوں گا نہیں. فجر کی نماز میں آیا اور خنجر چھپا کر کے آیا تھا, اور حضرت عمر حسب معمول نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے اور یہ خنجر لے کر کے آگے بڑھا اور ناف کے پاس اس نے حملہ کیا. حضرت عمر کی ناف پر حملہ کیا اور فوراً حضرت عمر زمین پہ گر پڑے, اور اس کے بعد کئی اور لوگوں کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا, اور جب دیکھا کہ لوگ گھیر لیں گے تو اس نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر کے ختم کر دیا. حضرت عمر مصلی پر گر پڑے, اور جیسے ہی مصلی پر گرے پہلی صف میں عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ آگے بڑھ کے پکڑ کے ان کو آگے بڑھایا. خلیفہ وقت تڑپ رہا ہے, ان کا خون بہ رہا ہے, جان لیوا حملہ ہوا ہے, مگر نماز نہیں روکی ہے. اللہ اکبر. یہ تھی اس سماج میں نماز کی اہمیت. خلیفہ وقت تڑپ رہا ہے, خون بہ رہا ہے پیٹ سے, مگر جلدی جلدی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہلکی نماز پڑھائی. اس کے بعد حضرت عمر کو گھر لایا گیا. خون رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے, اتڑیاں اندر کی کٹ چکی ہیں. حکیموں کو بلایا گیا, دوائیں دی جا رہی ہیں, دوا سب باہر نکل جا رہی. حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ اب میرا بچنا بہت مشکل ہے. جب یہ یقین ہو گیا کہ بچنا بہت مشکل ہے, اب وقت آخرت آ گیا, موت کا وقت آ گیا, حضرت عمر کے چہرے پہ گھبراہٹ آ گئی. عبداللہ ابن عباس اس موقع پر موجود تھے. انہوں نے کہا, عمر ابن خطاب, اے امیر المومنین, آپ کو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آپ تو نبی کے چہیتے صحابی ہیں. نبی جب تک زندہ رہے نبی کا آپ نے ساتھ دیا. نبی کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آیا, آپ ان کے دست و بازو بنے رہے, ان کا ساتھ دیتے رہے. پھر آپ کا دور خلافت آیا, لوگ آپ سے راضی ہیں, اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں, لوگ آپ سے راضی ہیں. اللہ بھی انشاءاللہ آپ سے راضی ہوگا, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اے بھتیجے, تو مجھے یہ باتیں بتا کر کے کیا سمجھتا ہے کہ میں دھوکے میں پڑ جاؤں گا؟ ارے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی تو یہ میرا کوئی کمال نہیں تھا, اللہ کا احسان تھا. اور تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ذریعے بڑے اچھے اچھے کام ہوئے ہیں, لَوَدِدْتُ أَنَّ لِي كَفَافًا. عمر کی تمنا تو یہ ہے کہ کاش اللہ کے ہاں جب ترازو پہ تولا جائے تو عمر کے گناہ اور عمر کی نیکیاں برابر پہ چھوٹ جائیں. عمر برابر پہ چھوٹ جائے, عمر اس پر بھی تیار ہے. اور اے بھتیجے, لو ان لی طلال ارض ذهبا لوددت ان افتدی به من عذاب اللہ. اگر میرے پاس زمین بھر کے سونا بھی آ جائے تو میں چاہوں گا کہ اللہ اپنے عذاب سے زمین بھر کے سونا دے کر کے اگر اللہ عذاب سے مجھے بچا لے تو میں عذاب سے بچنے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد کہا کہ جاؤ اما عائشہ کے پاس جا کے اجازت طلب کرو کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو عمر ابن خطاب بھی اپنے دونوں ساتھیوں کے بغل میں دفن ہونا چاہتا ہے. اگر اما عائشہ اجازت دیں تو مجھے وہاں دفنانا, ورنہ مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا. چنانچہ حضرت عائشہ سے اجازت مانگی کہ حضرت عائشہ نے کہا بالکل کوئی حرج کی بات نہیں. پھر اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ عبداللہ ابن عمر, میرے انتقال کے بعد پھر ایک بار جا کر کے اجازت مانگ لینا, اگر اما عائشہ اجازت دیں تبھی مجھے حجرہ عائشہ میں دفن کر دینا. گویا کہ حضرت عمر یہ مانتے تھے کہ وہ کمرہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے اور ان کی اجازت کے بغیر مجھے وہاں دفن ہونے کی اتھارٹی حاصل نہیں ہے. اسی موقع پر اپنے انتقال کے پہلے حضرت عمر نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی.
उन 6 लोगों में वो कौन 6 लोग थे? ये वही 6 लोग थे जिनका नाम लेकर के अल्लाह के नबी ने जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई थी। उसमें एक अबू बकर चले गए थे, एक हज़रत उमर का इंतकाल हो रहा था, उसमें हज़रत उस्मान थे, हज़रत अली थे, हज़रत तलहा थे, हज़रत ज़ुबैर थे, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे और हज़रत साद इब्न अबी वक़ास थे। अबू उबैदा का इंतकाल हो चुका था। अपने बहनोई सईद बिन ज़ैद का नाम भी उसमें नहीं डाला, जबकि वो भी अशरे मुबश्शरा में से थे। किसी ने पूछा कि जब अशरे मुबश्शरा ही को डाल रहे हैं तो अपने बहनोई सईद का नाम भी डालिएगा। नहीं, खिलाफत उमर ने कर लिया। उमर के खानदान में, उमर की रिश्तेदारी में किसी और को जरूरत नहीं है। कहा कि आपके बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत नेक है, कहा कोई जरूरत नहीं है, अपने बेटे को नॉमिनेट नहीं किया। यहां एक मसला याद रखिए, अब हजरत मुआविया की सीरत हम बयान करेंगे, वहां हम इस पर डिस्कशन करेंगे। क्या बाप के बाद बेटा खलीफा नहीं बन सकता? बन सकता है, जायज है। अगर बेटा खिलाफत के लायक है, हुकूमत के लायक है, उसकी में वो खूबियां हैं, हुकूमत करने के लायक कर सकता है। मगर हजरत उमर ने तकवा, ज़ोदो वरा का एक मिसाल कायम की। हजरत उमर ये मानते थे कि हुकूमत और खिलाफत ये बड़ी जिम्मेदारी की चीज़ है, बड़ी आजमाइश की चीज़ है, और ये आजमाइश मैंने झेलनी बहुत है, अब मेरे बाद मेरे ख़ानदान में कोई और न झेले। चुनांचे इस्लाम का ये रोशन आफ्ताब 12 साल, तकरीबन 12 साल हुकूमत करने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू लूलू फ़िरोज़ के हमले से जो जानलेवा उसने हमला किया, 3 दिन के बाद उनका इंतकाल हुआ और वहीं हुजरे आयशा में अपने दोनों साथियों अल्लाह के रसूल और अबू बकर सिद्दीक के पहलू में आपको दफन किया गया। हज़रत उमर फ़ारूक को एक एजाज़ और हासिल है, उन्होंने अल्लाह के नबी की एक हदीस सुनी थी कि दुनिया की हर रिश्तेदारी टूट जाएगी सिवाय नबी की रिश्तेदारी के, तो नबी के खानदान से अपनी रिश्तेदारी जोड़ना वो चाहते थे। चुनांचे उन्होंने हज़रत अली की एक बेटी उम्मे कुलसूम के लिए निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत उम्मे कुलसूम हज़रत अली की बेटी थी, नबी की नवासी थी, और उनसे हज़रत उमर का निकाह हुआ। और ये रिवायत अहले सुन्नत के यहाँ भी मौजूद है, अहले तशय्यो के यहाँ भी मौजूद है। ये अलग बात है कि वो जल्दी से हजम नहीं कर पाते, वो मानने को, वो कहते हैं ज़बरदस्ती ये शादी हुई थी। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा इंसान अपनी बेटी की शादी किसी से ज़बरदस्ती करेगा, दबाव में करेगा? बड़ी मनगढ़ंत रिवायात हज़रत उमर के खिलाफ गढ़ी गई। शिया की किताबों में यहाँ तक लिखा है कि जब हज़रत अबू बकर खलीफा हुए और हज़रत अली ने उनको खलीफा मानने से इनकार किया, तो हज़रत उमर गुस्से में पहुंचे हज़रत अली के घर में और जाकर के दरवाजे पे आग लगा दी। जब जाके दरवाजा खटखटाया तो हज़रत अली घर में मौजूद थे। हज़रत अली नहीं आए, अपनी बीवी हज़रत फातिमा को भेजा। फातिमा दरवाजे पर गई, दरवाजे को हज़रत उमर ने आग लगाया, दरवाजा हज़रत फातिमा के पेट पे गिर गया और उनके पेट का बच्चा शहीद हो गया। ये सारी कहानी क्यों गढ़ी गई? ताकि हज़रत उमर की नफरत और उनका बुग़्ज़ दिलों में भरा जाए। लेकिन कहानी गढ़ने वाला ये भूल गया कि मैं जो कहानी गढ़ रहा हूं, जो प्लॉट बना रहा हूं, इस प्लॉट में सिर्फ हज़रत उमर मुल्ज़िम नहीं ठहर रहे हैं। इस कहानी की बुनियाद पर तो हज़रत अली पर भी इल्ज़ाम पैदा हो रहा है कि भाई हज़रत अली इतने बहादुर आदमी थे, हैदर कर्रार थे, मरहब को जो है धूल चटा देने वाले और बद्र की लड़ाई में इस्लाम के दुश्मनों को कत्ल करने वाले, आज हज़रत अली की बहादुरी कहाँ चली? तो कहते हैं साहब हज़रत अली ने तकिया से काम लिया था। हज़रत अली ने तकिया से काम लिया था। वो चाहते तो बदला ले सकते थे, मगर दुनिया को बताना चाहते थे कि मैं मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं सब्र कर रहा हूँ। इसको सब्र नहीं कहते मेरे भाई। हज़रत अली की आंखों के सामने कोई उनके घर के दरवाजे को आग लगा दे, उनकी बीवी और नबी की बेटी के पेट पर वो दरवाजा गिरे, पेट का बच्चा मर जाए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई एतराज़ न करें और बाद में हज़रत उमर के साथ मिल करके खिलाफत और हुकूमत में उनको मशवरे दें, ये पॉसिबल नहीं। एक आम इंसान की गैरत भी ये गवारा नहीं करेगी कि अपनी बेटी के कातिल के साथ वो ऐसा रवैया इख्तियार करे। तो ये रिवायतें गढ़ी गई मेरे साथियों। ये रिवायतें क्यों गढ़ी गई? ताकि इस्लाम के जो ये 2 पिलर्स हैं, अबू बकर उमर, आप शिया हजरात की जितनी हदीस की किताब है, जैसे हमारे यहाँ सही बुखारी है, उनके यहाँ कुलैनी की अल-काफ़ी है, बहुत मशहूर किताब है अल-काफ़ी, उसमें रिवायतें भरी पड़ी हैं। जगह जगह हजरत अबू बकर उमर को शैतान कहा गया है, इब्लीस कहा गया है, नौज़ुबिल्लाह। तो ये अकीदे रख करके कोई कहेगी साहब हम बड़े उम्मत के चहेते हैं, हम फ़लस्तीन के बड़े हमदर्द हैं, हम मुसलमानों के बड़े हमदर्द हैं, तो भैया ये हमदर्दी तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। जिनके अकीदों में, जिनके रगो पे में अबू बकर उमर की नफरत और जिनकी किताबों में हज़रत अबू बकर उमर के खिलाफ जो है इस तरीके के रकीक और गलीज़ किस्म की बातें लिखी हों और ये अकीदा उनके यहाँ बाकायदा बच्चे को पढ़ाया जाता हो। अभी मैं एक तकरीर में मैंने ईरान और इसराइल की जो भी जंग चल रही थी उस पर मैंने एक छोटी सी बात कही कि भाई इस जंग में बिला वजह कमेंटबाजी मत कीजिए, ईरान को बहुत बड़ा हीरो मत समझिए। इसराइल ने जितना जुल्म फ़लस्तीन में मुसलमानों पर किया है उससे कहीं ज़्यादा जुल्म ईरान ने सपोर्ट करके सीरिया में मुसलमानों पर किया है।
अभी सीरिया में जब नई हुकूमत आई है, लोग कैद खानों से 40-40 साल के बाद उनको सूरज देखना नसीब हुआ है। कब्र लाशों को ऐसे ही जमीन में गाड़ दिया गया और लाशों पर बुलडोजर चला दिया गया। पूरी दुनिया में ये जुल्म नहीं हुआ जो सीरिया की सरजमीन पर हुआ। और किसने ये जुल्म किया? बशार अल असद ने किया, जो एक नंबर का नौसेरी शिया है, और उसको सपोर्ट किया है ईरान की आर्मी ने, ईरान की फौज ने। और आज साहब हमारे लोग ईरान को बहुत बड़ा हीरो मान रहे हैं। तो हमें आंखें और दिल और दिमाग सब खोल कर रखना चाहिए। तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ईरान का अंधा सपोर्ट मत कीजिए। तो आप यकीन कीजिए, वो सोशल मीडिया पर मेरा वो क्लिप जब आया है तो मैंने एक दिन देखा, कमेंट देखा यूट्यूब के ऊपर, तो कमेंट में लोग मुझे गालियां दे रहे हैं और मेरे साथ साथ अबू बकर, उमर, उस्मान को भी गालियां दे रहे हैं। लानत बर अबू बकर, लानत बर उस्मान, लानत बर उमर। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान का नाम लेकर के आज भी लानत की जा रही है। तो भाइयों, ये हमसे नहीं हो सकेगा। जो अबू बकर का नहीं है वो हमारा नहीं है, जो उमर का नहीं है वो हमारा नहीं है। इसलिए नहीं कि हमारी उमर के साथ कोई रिश्तेदारी है, इसलिए कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं और नबी उमर से मोहब्बत करते थे। साहबे किराम कहते हैं, हम अपने बच्चों को जिस तरीके से कुरान सिखाते थे वैसे अबू बकर उमर की मोहब्बत सिखाते थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि नबी के दौर में हम नबी के बाद अगर किसी को दर्जा देते थे तो अबू बकर को देते थे, और अबू बकर के बाद किसी को दर्जा देते तो उमर को देते थे। हम अबू बकर, उमर, उस्मान के बराबर किसी को नहीं समझते थे। आज साहब लोग घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं। एक साहब कहने लगे, पूछा गया कि हजरत अली अफजल हैं कि हजरत अबू बकर अफजल हैं? तो बोले देखो, हजरत अली अहले बैत में से हैं, हजरत अली का कोई कंपैरिजन मत करो, उनका कोई मुकाबला हजरत अबू बकर के साथ नहीं, क्योंकि हजरत अबू बकर सिर्फ सहाबी हैं, हजरत अली अहले बैत में से। यही अकीदा तो अबू बकर उमर को गाली देने वालों का भी है। कभी आपने उनके मुंह से सुना? वो हमेशा हजरत अली का नाम आता है, इमाम अली बोलते हैं, इमाम अली बोलते हैं। उनके मौलवियों का बयान मौजूद है कि इस दुनिया में नबियों के बाद सबसे अफजल अगर किसी का मकाम है, नबियों के बाद क्या, वो आखिरी नबी को छोड़ के बाकी नबियों से भी अली को अफजल मानते हैं। कहते हैं कि आखिरी नबी को छोड़ के बाकी नबियों से भी अफजल कौन है? अली हैं। नऊजुबिल्लाह, हमारा ये अकीदा नहीं। हम अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, अली को सबको सहाबी मानते हैं, मासूम नहीं मानते। हम किसी को मासूम नहीं मानते। मासूम अगर किसी को मानते हैं, अल्लाह के रसूलों को मानते हैं। सहाबा किराम मासूम नहीं थे, हजरत अली भी मासूम नहीं थे, और अली को हम चौथे नंबर पे मानते हैं। और चौथे नंबर पे मानने में हजरत अली की कोई तौहीन नहीं है। जब हजरत उमर का इंतकाल हुआ तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, उनको गुस्ल दिया जा रहा था, कफनाया जा रहा था, पीछे से किसी ने आके मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहा कि अल्लाह की कसम, अगर कोई इंसान ऐसा है कि मैं दुनिया से जब जाऊं तो ये सोच के जाऊं कि उसके जैसा अमल लेके जाऊं, तो ऐ उमर मैं चाहता हूं कि मैं तेरे जैसा अमल लेके जाऊं। क्योंकि मैंने जब भी नबी की जबान से सुना है, नबी फरमाया करते थे, अबू बकर आए उमर आए, अबू बकर गए उमर गए। नबी की जबान से तुम्हारा और अबू बकर का नाम मैंने बहुत सुना है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने पीछे पलट के देखा तो अली बिन अबी तालिब खड़े थे। ऐ कहानियां गढ़ने वालों, ऐ अली और उमर में दुश्मनी की कहानियां सुनाने वालों, तुम्हारी कहानियां फ्रॉड हैं, तुम्हारी कहानियां झूठ हैं। यहां उमर के जनाजे पर अफसोस कर रहे हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो मेरे साथियों, हजरत उमर इब्न खत्ताब आज जहां जहां भी इस्लाम का झंडा लहरा रहा है, वो इलाका हजरत उमर के एहसान के तले दबाए। चाहे सीरिया की सरजमीन हो, चाहे फलस्तीन की सरजमीन हो, चाहे कूफा और बसरा और इराक की सरजमीन हो, चाहे मिस्र की सरजमीन हो, ये तमाम इलाके हजरत उमर के जमाने में फतह हुए थे। ये जहां जहां इस्लाम का जो नक्शा फैला हुआ है और इस्लाम का कलमा जहां जहां बुलंद हो रहा है और ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सराएं बुलंद हो रही हैं, हजरत उमर के एहसान तले ये पूरी दुनिया इस्लाम दबी हुई है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की रहमत नाजिल हो हजरत उमर पर। इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में हजरत उमर के बाद जो तीसरे खलीफा हुए थे हजरत उस्मान गनी, उनकी सीरत और उनकी ज़िंदगी और उनके हालात पर आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें हजरत उमर फारूक और दीगर तमाम सहाबे किराम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिनके दिलों में सहाबे किराम के खिलाफ बुग़्ज़ है, या तो अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमा दे या उनको उनके अंजाम तक पहुँचा दे। इलाहुल आलमीन हमें तौफीक दे कि अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने आने वाली नस्लों को सहाबे किराम और अहले बैत की मोहब्बत पर हम परवान चढ़ाएं। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को अबू बकर उमर की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को गैरत सिखाओ कि आपके बच्चों के सामने कोई अबू बकर उमर को बुरा कहे तो आपके बच्चे को तैश आ जाए। अरे हमारी माँ को कोई बुरा कह दे, हमारे बाप को कोई बुरा कह दे, हमारी गैरत जाग जाती है। तो जैसे हमारी अपनी बाप और अपनी माँ के लिए गैरत जाग जाती है, उससे कहीं ज्यादा ईमानी गैरत नबी के सहाबा के लिए होनी चाहिए। नबी के सहाबा को जो बुरा भला कहे या उनसे नफरत करे, उसके लिए हमारे दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। यही तरबियत अपने बच्चों की कीजिए। आपने इस्लाम लाने के पहले जो जिंदगी गुजारी है, जिसको हम दौरे जाहिलियत की जिंदगी बोलते हैं, वो बहुत आसान जिंदगी नहीं थी।
ایک مرتبہ حضرت عمر اپنے دور حکومت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ، ایک صحرا میں، ریگستان میں، انہوں نے کہا کہ یہاں اسی جگہ پہ میرا باپ مجھ کو مارا کرتا تھا، مجھ سے بکریاں چرواتا تھا. آج عمر امیر المومنین ہے، لیکن ایک وقت تھا جب میں بکری چرایا کرتا تھا. بعد میں حضرت عمر فاروق نے تجارت کی اور اللہ تعالیٰ نے تجارت میں بہت برکت دی ان کو. یہی دو پروفیشن اللہ کے نبی نے بھی اپنایا تھا. اللہ کے نبی نے بھی بکریاں چرائی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تجارت کی تھی، اور یہی دو پروفیشن حضرت عمر کا بھی تھا. حضرت عمر دور جاہلیت میں شراب بھی پیتے تھے، شرک بھی کرتے تھے، اسلام کے کٹر دشمن تھے وہ، لیکن ان کا ایک روب تھا، ایک دبدبا تھا. ان کی ذات میں، ان کی پرسنالٹی میں اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ڈالا تھا کہ عمر جہاں آ جاتے تھے لوگ خاموش ہو جاتے تھے. حضرت عمر کی زبان پہ ہنسی مذاق بہت کم دیکھا گیا. بہت سیریس انسان تھے، بہت سنجیدہ انسان تھے، سمجھدار تھے، اور اللہ کے نبی کی آرزو تھی کہ کاش عمر اسلام لے آئیں. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں رات کی تاریکی میں، اے اللہ، ابو جہل ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں جو تجھے زیادہ محبوب ہے اسے تو اسلام کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ کو عمر ابن خطاب کا اسلام زیادہ محبوب تھا، ابو جہل کو ایمان کی توفیق نہیں ملی. حضرت عمر اسلام لائے، اور جب اسلام لائے تو جتنے کٹر اسلام کے دشمن تھے اب اتنے ہی مشرکوں کے دشمن بن گئے اور اسلام کے سپورٹر ہو گئے. اور چونکہ دور جاہلیت میں شراب پیتے تھے، اسلام لانے کے بعد حضرت عمر کے دل میں بڑی کلک تھی، بڑی کسک تھی کہ کاش شراب حرام ہو جائے. جب شراب کے بارے میں پہلی آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، اے نبی لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ شراب اور جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدہ ہے. یہ پہلی آیت نازل ہوئی تھی شراب کے بارے میں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کچھ فائدہ ہے شراب اور جوئے میں مگر گناہ زیادہ بڑا ہے اس کے فائدے سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی فائنلی اس آیت میں حرام نہیں کیا تھا شراب کو. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر کہتے تھے، اے اللہ بین لنا فی الخمر امرا وافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں کلیئر حکم نازل فرماتے. پھر دوسری آیت نازل ہوئی تھی، دوسرے نساء کی آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا. اور پھر تیسری اور فائنل آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. شراب حرام ہے، گندی چیز ہے، اس سے بچو تبھی کامیاب ہو سکتے ہو. تو حضرت عمر کی ایک خاص بات یہ بھی نوٹ کر لیجیے، حضرت عمر کے دل کی مراد کئی مرتبہ اللہ نے پوری کی ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر ملہم تھے. ملہم سمجھتے ہیں؟ جس کے دل پر اللہ تعالیٰ صحیح بات ڈال دے. اسلام میں پہلے پردے کا حکم نہیں تھا. صحابہ آتے تھے اللہ کے نبی کی بیویوں کے سامنے فیس ٹو فیس بات کر لیتے تھے. حضرت عمر کو یہ بات بہت گراں گزرتی تھی. اللہ کے نبی کی بیویوں، ان کی اپنی بیٹی حفصہ بھی تھی، اللہ کے رسول کے سسر بھی تھے. حضرت ابو بکر بھی سسر ہیں، حضرت عمر بھی سسر ہیں. 4 خلفائے راشدین میں 2 نبی کے داماد ہیں، 2 سسر ہیں. بعض لوگوں کو صرف ایک داماد سے نبی کی رشتہ داری نظر آتی ہے. اگر سارا مسئلہ رشتہ داری پر ہی ہے تو رشتہ داری تو ابو بکر سے بھی ہے، رشتہ داری تو عمر سے بھی ہے. اصل چیز کیا ہے؟ رشتہ داری سے بڑی چیز کردار ہے، کیریکٹر ہے. اور نبی کی زندگی میں ہر صحابی کا اپنا ایک کردار ہے.